اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ قال ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام انا قتیل الابراء۔ ایام عزا کا آخری دن اور امام کے چاہنے والے، امام کا ماتم کرنے والے دور دور سے آئے ہوئے ہیں اور اپنے مولا کو رخصت کرنے کے لیے، الوداع کہنے کے لیے، اور ہر انجمن اپنے اعتبار سے الوداعی ماتم بھی، الوداعی نوحہ بھی پڑھ رہی ہے۔ درد بھرا نوحہ بھی آپ نے انجمن کاظمیہ سے بعنوان صدا ملاحظہ فرمایا۔ کیا بہترین نوحہ، کیا بہترین صدا، اور اس صدا کے اگر آپ مصرے پہ غور کریں تو آپ کے آنسو نہیں رکیں گے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ نوحہ سنیے تو غور سے سنیے۔ یہ درد بھرے نوحے اور مدینہ پہنچ کر جناب زینب کی فریاد۔ عزادارو، ایام عزا کا آخری دن ہے، ہم اور آپ پرسہ دینے کے لیے یہاں پہ بی بی زہرا کو آئے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع خواتین کا ہے، دوسری طرف مرد و زن اپنے اعتبار سے آج خود کائنات کے امام کو بھی پرسہ دینا ہے، اس لیے کہ آج میرا امام غریب ہو گیا، آج میرا آخری امام یتیم ہو گیا۔ آج ذرا سوچئے، چند برس کے امام کی عمر ہے اور اس کے بعد بابا کا سایہ اڑ چکا ہے۔ عالم غربت میں میرا مولا پردیسی ہے، اس لیے کہ مدینے میں رہنے والے افراد مدینے میں تھے، لیکن سامرہ میں کون تھا؟ سامرہ میں کون تھا؟ قید و بند کی زندگی گزارنے والا میرا 11واں امام، اور اس کے بعد ایسا زندان۔ آپ چلیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے سامرہ کے اس زندان کو آپ تشریف لائیں، دیکھنے کے بعد آپ کے آنسو نہیں رکیں گے۔ اس زندان میں جہاں پہ جس میں میرے 11ویں امام کو اسیر کیا گیا تھا، اس میں نہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے نہ بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر، آواز گریہ بلند ہے۔ چونکہ شبیہیں برآمد ہوں گی، ایک ساتھ مجھے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ ایام عزا کا آخری دن، ان جملات کو بھی سمیٹ کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں عزیزو، جتنا ہو سکے آپ پرسہ دے لو، اس لیے کہ پرسہ لینے کے لیے مدینے کے بقیع کے قبرستان سے ایک کوکھ جلی ماں آئی ہے، جس کا پہلو شکستہ ہے، اور وہ تنہا نہیں آئی ہے بلکہ شام گئی ہے۔ شام میں اپنی بیٹی زینب کو لیا ہے، اور اس کے بعد اس کی بیٹی نے اپنی بھتیجی سکینہ کو لیا ہے، لے کے یہاں تک آئی ہے۔ آنے کے بعد سکینہ جب اپنے بابا کے عزاداروں کو دیکھتی ہوگی تو تڑپ پہ کہتی ہوگی، پھوپھی اماں کاش یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو میرا اصغر مارا نہ جاتا۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم حسین میں۔ عزادارو، آنسو بہاؤ، گریہ کرو، ماتم کرو۔ ابھی آپ نے بہترین صدا انجمن کاظمیہ کے ذریعے سماعت فرمائی نا کہ آج شبیر کی بہن لٹ کے مدینہ آئی ہے۔ درد بھرا نوحہ، درد بھری یہ صدا، ذرا آپ اس کے اوپر غور کریں۔ عزادارو، ابھی ایک ساتھ جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی ہماریاں آئیں گی، آپ اس کی زیارت کریں گے، ذرا ٹھہر جائیے گا۔ میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں اس کے ضمن میں۔ یہ دونوں بہنوں نے معرکہ کربلا کے بعد وہ کام انجام دیا ہے، بھیا مشن کو دونوں بہنوں نے زندہ رکھا، اور اس کے بعد یزید کے گھر میں صف ماتم برپا کر کے زینب نے کربلا کی طرف رک کر کے کہا ہوگا، بھیا
कि शाम में मुझे पत्थर मारे जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि बागी की बहन आई है। आज मैंने अपनी मजलूमियत को साबित करके यजीद के घर में मैंने खुद आपकी मजलिस से अदा करके आपकी फतह का ऐलान कर दिया। हुसैन की बहन उम्मे कुलसूम, जिसका ये मरसिया था, अजीब मरसिया है। मदीना पहुंचने के बाद दर्दनाक मरसिया, मदीना तो जद्दना ला तकबलीना फबिल हसरात वल अहजान जेना, नाना के मदीने हमें कबूल न करना। इसलिए कि जब जा रहे थे तो गोदियां आबाद थी, गोदियां भरी हुई थी, लेकिन जब आए हैं तो गोदियां खाली हैं। लेकिन जब आए हैं तो गोदियां खाली हैं। हमारा अकबर मारा गया, औनो मोहम्मद मारा गया, 6 माह का असगर मारा गया, मेरा कासिम का लाशा पामाल हो गया, सब मारे गए। अब्बास के शाने कलम हो गए, जहरा का लाल मार दिया गया। आपके सामने थोड़ी देर में दोनों बहनों की अमारियों की छवि आ रही है। ये बीबी ज़ैनब जो अपने भैया को रोती हुई मदीने में आ गई, और मदीने में आने के बाद जब ये देखा कि अभी सूरज ढला नहीं है, कहा बेटा सज्जाद काफिले को बैरून मदीना रोक दो, इसलिए कि मदीने में जाते हुए हमें शर्म आ रही है। ज़ैनब भरी गोदियों के साथ करबला के लिए गई थी, आज ज़ैनब लुट के आई है, सारे अजीज व कुर्बा मारे गए हैं। ज़ैनब रात की तारीकी में जाना चाहती है। ए मेरे भाई, ए मेरे बेटा सज्जाद, बशीर को पहले भेज दो, आने वाले काफिले की सुनानी सुना दे। काफिला जो 28 रजब पे गया था, आज वो काफिला लुट के आया है। उस काफिले के हमरा ना अब्बास है, ना अली अकबर है, ना ओनो मोहम्मद है, ना कासिम नौशाह है, ना बेटा अली अकबर है, और ना रुबाब का महलका अली असगर। जज़ाकल्लाह, खुदा आप किसी गम में न लाए, सवाए गम हुसैन में गिरिया करो, मातम करो, बीबी ज़हरा को बुरसा दो, अपने आखिरी इमाम को बुरसा दो। मेरा दिल कहता है, यकीन की मंजिल में कहता है, मेरा इमाम बुरसा लेने के लिए यहाँ आया हुआ है। बीबी उम्मे कुलसूम का मरसिया, मदीना तो जद्दना ला तकबलीना फबिल हसरात वल अहजान जीना। ए नाना के मदीने हमें कबूल न करना, हम इस लायक नहीं रहे, इसलिए जब जा रहे थे 28 रजब पे तो गोदियां आबाद थी, जब पलट के आए हैं तो गोदियां खाली हैं। लो दादारो, बशीर ने सुनानी सुना दिया, और उसके बाद फिर सूरज डूब गया, अंधेरा छा गया। अली की बेटी चली, रोज़े रसूल पे हाजिरी दिया, और उसके बाद अजीब अंदाज था। अरे ज़ैनब औलिया मकाम का, सानिया ज़हरा का अजीब अंदाज था। अल्लामा दरबंदी लिखते हैं, जब नाना का मज़ार आया ना, तो ज़ैनब ने नाना के मज़ार को देखने के बाद घुटनियों के बल चलना शुरू किया, घुटनियों के बल चलना शुरू किया। नाना ज़ैनब आ गई, नाना ज़ैनब आ गई, नाना ज़ैनब उजड़ के आई है, नाना ज़ैनब उजड़ के आई है, नाना ज़ैनब खाली आगोश आई है। ए नाना, करबला में आपका हरा भरा बाग उजाड़ दिया गया। जज़ाकल्लाह। नाना, सब कुछ करबला में लुट गया, ज़ैनब सब कुछ खो के आई है, बस आखिरी मरहला तकरीर का। नाना ज़ैनब उजड़ के आ गई, नाना ज़ैनब की आगोश खाली हो गई, नाना सब मारे गए। ए नाना, फरियाद करते करते कहा, नाना, ए मेरे नाना, जब कोई आता है ना सफर से तो सौगात लेके आता है। नाना ज़ैनब भी सौगात लेके आई है। वो सौगात क्या है? बकौल शायर, लो नाना जान, तोहफा नया लेके आई हूँ, कटवा के सर
लो नाना जान तोहफा नया लेके आई हूँ, कटवा के सर हुसैन का मामा लाए हूँ। ज़ैनब ने बैन कर दिए और बैन करने के बाद अब उसके बाद अजीजों आपके सामने थोड़ी ही देर में जनाब उम्मे रुबाब की अमारी की छवि आ रही है। रुबाब को पहचानो, ये अली असगर की माँ है। अज़ादारों, रुबाब जैसे करबला में लुटी कोई बीबी नहीं लुटी है। दो ही तो बच्चे थे ना, एक अली असगर, एक सकीना। अरे एक को करबला के हवाले कर दिया, दूसरे को जिंदान शाम के हवाले कर दिया। आपके सामने जनाब रुबाब की अमारी की छवि आ रही है। ये रुबाब शाम गरीबा की रात और उसमें तड़प रही है, ख़याम जलाए जा रहे हैं, रिदाएं छीनी जा रही हैं। रुबाब आगे बढ़ी, ए जालिमो, अरे मेरे असगर का झूला रहने दो, मेरे असगर को मार दिया गया, मेरे असगर को तीर हुरमुला का निशाना बनाया गया। ए जालिमो, ए दुश्मनों, मेरे असगर की निशानी है ये झूला, मेरे असगर का झूला तो रहने दो। लेकिन तारीख मकातिल ने लिखा, दुश्मनों ने जब झूले में आग लगा दिया, रुबाब ने तड़प के जुमला कहा, ए दुश्मनों, असगर की शहादत के बाद ये गहवारा अली असगर की निशानी था, तुमने इसमें भी आग लगा दिया। यही वजह है कि रुबाब झूले की जली लकड़ियां लेके करबला से कूफा, शाम, जिंदान शाम, मदीने तक आ गई झूले की निशानियां लिए हुए। और उसके बाद हमेशा कहती रही, ए मेरे बेटा अली असगर, ये माँ रुबाब तुम्हें जिंदगी भर रोती रहेगी। ए मेरे बेटा, रोने के लिए ये झूले की लकड़ियां निशानी के तौर पे काफी। हाँ ज़ादारो, अब आपके सामने थोड़ी ही देर में जनाब फिज़ा की हमारी की छवि आ रही है। फिज़ा खानवाद अहले बैत की कनीज़, आपको मालूम है ना, हसन हुसैन फिज़ा को माँ कहते थे, ज़ैनब उम्मे कुलसूम फिज़ा को बहन कहती थी, रसूल कायनात फिज़ा को बेटी कहा करते थे। फिज़ा ने महज़रनामे शहादत देखा भी था, फिज़ा ने महज़रनामे शहादत पढ़ा भी था। लिहाजा रसूलुल्लाह का जब वक्त आखिर आया तो इसी फिज़ा से कहा, फिज़ा जो मांगना हो हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। फिज़ा ने कहा, या रसूलुल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, या रसूलुल्लाह इतनी हयात दे दो, मेरी उम्र इतनी बढ़ जाए, इतनी दुआ कर दो मेरी उम्र बढ़ जाए, ताकि दरबार शाम में ज़ैनब के हिस्से के ताज़ियाने ये फिज़ा खाएगी दरबार यजीद में। ए रसूलुल्लाह मेरे लिए दुआ कर दो। दुआ तमाम हुई, फिज़ा की उम्र में इजाफा हुआ, मदीने से करबला तक फिज़ा आई और फिज़ा वहाँ से चल के शहादत हुसैन के बाद शाम आ गई, शाम में दरबार यजीद में आ गई। पहचानो फिज़ा की कुर्बानियों को पहचानो। ए हज़ादारो, फिज़ा साथ साथ करबला से शाम तक अली और ज़हरा की बेटियों का साथ देती रही। उसके बाद जब दरबार यजीद आया और यजीद हम कलाम होना चाहता है, तो फिज़ा ने कहा यह मुमकिन नहीं है, आज ही के लिए मैंने रसूलुल्लाह से दुआ मांगी थी कि मैं ज़ैनब के ताज़ियानों के हिस्से अपनी पुश्त पे खाऊंगी। उसके बाद फिर क्या हुआ, यजीद ने कहा इस ज़ईफ़ा के ऊपर कोड़े बरसाए जाए और जितने भी तायनात थे अफराद हबशी गुलाम सबको मुतवज्जे किया। फिज़ा ने कहा, ए हबशियों, जल्लाद आ गया है, ताज़ियाना खाने की नौबत है। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? क्या तुम्हें पता? हबशियों, तुम्हारे कबीले की एक औरत
ताजियाना खाने के लिए तैयार, और तुम अपनी आंखों से खड़े देख रहे हो। जब फिजा ने अपना तारुफ कराया तो मकातिल ने लिखा है वही हबशी गुलाम तलवार सोच के सामने आ गए और कहते यजीद जल्लाद को वापस बुला, वरना दरबार में खून की नदियां बह जाएंगी। लो अदादारो, यजीद ने अपने हुक्म को वापस लिया, जल्लाद वापस गया। उसके बाद फिजा ताजियाना खाने से बच गई। मेरा दिल कहता है अजब नहीं कि ज़ैनब ने कूफे का रुख किया हो। नजब के कहने के बाद ए नजब में सोने वाले बाबा, एक फिजा को बचाने के लिए इतने हबशी गुलाम आ गए, फिजा ताजियाना खाने से बच गई। मगर आपकी बेटी ज़ैनब करबला से कूफा, कूफे से शाम, शाम से दरबारे शाह ताजियाना खाती हुई यहाँ तक पहुँच गई। हाँ ज़दारो, अब आपके सामने थोड़ी ही देर में उस इमाम की शबी आने वाली है जिसको बीमार करबला के नाम से याद किया जाता है। उस इमाम के ताबूत की शबी आ रही है कि जो अपने बाबा की शहादत के बाद अपने बाबा को गुस्ल नहीं दे पाया, कफन नहीं पहना पाया, नमाज जनाजा नहीं पढ़ा पाया, और उसके बाद अपने बाबा को जब मक्तल में देखा तो मेरे इमाम सज्जाद की हालत मुतगय्यर हो रही है। और उसके बाद जनाब ज़ैनब ने कहा बेटा सज्जाद अपने को संभालो, ए मेरे लाल अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी फूफी अम्मा जिंदा न रह पाएगी। यहाँ से करबला से कूफा, कूफे से शाम चलना है बेटा। इमाम सज्जाद ने कहा ए फूफी अम्मा वो बेटा क्या करे जिसके बाबा का लाशा, पामाल शुदा लाशा आंखों के सामने बेगोरो कफन पड़ा हुआ है, मगर बेटा इतना मजबूर है, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में खारदार तो, कमर में लंगा, रोता हुआ सच्चा बाजार शाम से गुजर रहा है। ए हज़ादारो, यही वजह थी इमाम सज्जाद से जब पूछा गया ए मेरे मौला सबसे ज्यादा आप पर जुल्म सितम कहाँ ढाए गए, मेरे इमाम ने करबला का नाम नहीं लिया। बार बार इमाम ने कहा शाम अशाम अशाम। मौला अली अकबर के सीने पे बर्ची का फल लगा, आपने करबला को याद नहीं किया। और न मोहम्मद का लाशा पामाल हुआ, आपने करबला को याद नहीं किया। मौला अली अकबर मारे गए, आपने करबला को याद नहीं किया। ए मेरे मौला आखिर शाम में क्या हो गया? मौला बार बार कह रहे अशाम अशाम अशाम। मौला बताइए तो सही। मेरा चौथा इमाम कहता है जब हमें शाम के बाजारों में लाया गया तो ऐसे खींचा जा रहा था जैसे तुर्को दैलम के गुलाम, और जब मैं गिर जाता था तो जालिम मुझे ताजियाने मारते थे। पीछे पीछे इस्मत बाप बीवियों का काफिला सरबरहना। अरे कोई मुझसे पूछे कि मैंने कैसे उस शाम के हालात को बर्दाश्त किया। खानवाद इस्मत बेमकनो चादर बाजार से गुजारे जा रहे थे और मैं अपनी आंखों के सामने सारे मंजर को देख रहा था। हाँ ज़ादारो, बस आखिरी छवि अब आपके सामने आने वाली है। हुसैन और ज़हरा के लाल की आखिरी जुलजना की छवि है। ये जुलजना ये वफादार घोड़ा है जिसने हुसैन का बड़ा साथ दिया। जब अजीज़ व अकारिब मारे गए, अंसार मारे गए, हुसैन ने तन्हाई का एहसास किया। एक मरतबा कहा हल मिन नासिरिन यंसुरना, और उसके बाद इमाम ने अपने जानिसारों को पुकारा, इमाम ने अपने चाहने वालों को पुकारा, या अब्दाल सफा व फुरसान अल हिजा। ए मेरे बहादुरों, ए मेरे शेरों, तुम्हें क्या हो गया? हुसैन करबला के मक्तल में अकेला हो गया, सारे अफराद मारे गए। ए मेरे शेरों, मेरे बहादुरों, तुम्हें क्या हो गया? हुसैन तुम्हें पुकार रहा है, तुम जवाब नहीं देते। मकातिल ने लिखा है कटी हुई गर्दनों से आवाज आई, मौला
ہمیں موت نے مجبور کر دیا ہے، ورنہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے ضرور آتے۔ امام در خیمہ پہ آئے، اس کے بعد سب کو آخری سلام کیا، اے بی بی رقیہ تم پر سلام، ام فروہ تم پر سلام، زینب ام کلثوم تم پر سلام، اے ماں کی کنیز فضہ تم پر سلام۔ جب زینب نے سنا نا، ایک مرتبہ زینب نے کہا، اے بھیا آپ بھی جانے پہ تیار، آپ بھی مرنے پہ تیار، یہ زینب کس کے سہارے زندہ رہے گی؟ پنجتن کی آخری نشانی جا رہی ہے۔ بس عزیزو 5-7 منٹ اس مصائب کو سن لے، مجلس تمام ہو جائے گی، تقریر تمام ہو جائے گی۔ حسین کو اندر بلایا گیا، زینب نے لپٹ کر رونا شروع کیا، بہن صبر کرو، بہن صبر کرو۔ اس کے بعد کہتی ہے بھیا یہ بھرا گھر بھرا کارواں میرے حوالے کر کے جا رہے ہو، زینب کیسے برداشت کرے گی؟ کربلا سے کوفہ و شام کہتے جائے گی۔ زینب کی بے قراری کو دیکھ کر حسین نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، اے پروردگار میری بہن کو صبر دے دے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم حسین، میری بہن کو صبر دے دے۔ دعا تمام ہوئی، زینب نے کہا جائیے میرے بھائی، خدا حافظ، دین نانا کے دین کو بچائیے۔ اور اس کے بعد سجاد کے خیمے میں آئے، وہاں پہ الوداع کہا، وہاں سے رخصتی ہوئی۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا، بیٹا سجاد میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہنا جب تم پلٹ کے یہاں سے مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو سلام کہہ دینا، اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا تو میرے بابا کی پیاس کو یاد کر لینا۔ لو عزادارو، حسین سب کو رخصت کر کے خیمے سے باہر نکلے، آگے چلنا چاہتے ہیں، نظر یمیناً و شمالا، حسین نے داہنے دیکھا بائیں دیکھا، نہ عباس ہے نہ علی اکبر ہے نہ انو محمد ہے۔ حسین تڑپ گئے۔ زینب نے کہا بھیا گھبرائیے گا نہیں، زینب اپنے ماں جائے کو سوار کرے گی۔ لیجئے حسین سوار ہو گئے، مقتل کی طرف چلنا چاہتے ہیں۔ بچی سمو سے لپٹی فریاد کر رہی ہے، میرے بابا کو کہاں لے جا رہا ہے؟ اے ذوالجلال، جس کو بھی لے گیا مقتل کربلا میں وہ واپس نہیں آیا، اب میرے بابا کو لے کے جا رہا ہے۔ لو آپ کے سامنے مولا کے ذوالجلال کی شبیہ جا رہی ہے، آپ زیارت کرو، مولا حسین کو رخصت کرو، مولا حسین کو الوداع کہو۔ اے مولا ہم غریبوں کا سلام، مولا ہم غریبوں کا سلام، مولا ہم غریبوں کا سلام۔ اگر کچھ کمی رہ گئی ہو تو اسے معاف کر دیجئے گا۔ حق کے وفا ادا نہ ہو سکا، حق کے گریہ ادا نہ ہو سکا، حق کے ماتم ادا نہ ہو سکا۔ زہرا کا لال میدان میں آ گیا، میدان میں آنے کے بعد رجس بڑھا، ادھر سے ابتدا ہوئی، ادھر سے اعلان جنگ ہوا۔ حسین نے جب ادھر سے جنگ شروع ہوئی، ادھر حسین نے بھی تلوار نکالی۔ یہ زہرا کے لال کا ذوالجلال آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے، حسین کی سواری آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے، حسین کا رہبار آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ عزادارو دعا کرو بی بی زہرا آپ کے نوح سلام کو قبول کر لے، آپ کے اداری کو قبول کر لے۔ بس فرصہ دے چکے، 2-4 منٹ بولا اور تقریر سنے، میری تقریر تمام ہو رہی ہے۔ زہرا کلا کربلا کے مقتل میں یکو تنہا، اور اس کے بعد چاروں طرف سے ظلم کی بوچھار، تیر پتھر نیزے چل رہے تھے۔ اس کے بعد لڑتے لڑتے حسین فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ اے بھائی عباس، لڑنے کا بڑا ارمان تھا، اٹھو اپنے آقا کی جنگ دیکھو، اپنے بوڑھے آقا کی جنگ دیکھو۔ اپنے بھائی سے محو گفتگو ہے۔ دشمن یہ سمجھا کہ حسین پانی پی لیں گے، دشمن نے کہا حسین آپ یہاں پہ دریا پہ آ کے پانی پی رہے ہو، آپ پہ خیمے میں دشمنوں نے آگ لگا دیا۔ حسین اٹھے، بھائی خدا حافظ، اے میرے عباس خدا حافظ۔ اس کے بعد وہاں سے چلے تو پتہ یہ چلا دشمنوں نے ایک سازش کیا تھا، اگر حسین دریائے کنارے پہنچ کر پانی پی لیے تو پھر ہم لڑ نہ پائیں گے۔ حسین پھر چلے وہاں سے، اس کے بعد اپنے شجاعت کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز غیبی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں پھر سمٹ آئی، ایک جسم
नाज़रीन ज़हरा पर कोई तलवार मार रहा है, कोई तीरो तबर मार रहा है, जिसके पास कुछ न था वो ज़हरा के लाल को पत्थरों से मार रहा था। हुसैन ने कहा, ए अस्बे ज़ुलजना, ए मेरे वफादार घोड़े, मुझे उस कत्लगाह तक पहुंचा दे जिस जमीन को मेरी माँ ने बालों से साफ किया है। ज़ुलजना लेके चला, नशेब आया, कत्लगाह हुसैनी आई। ज़बान बे ज़बानी में वफादार घोड़े ने कहा, मौला उतर जाइए, नशेब आ गया। ज़ुलजना ने अपने घुटनों को जमीन पे टेका। हुसैन जमीन करबला पे आए? नहीं, हुसैन जमीन करबला पे बराह रास्त नहीं आए। हुसैन का लाशा तीरों पे मुअल्लक रहा। उसके बाद जमीन करबला पे हुसैन ने बड़ी मुश्किल से सर रखा, एक जुमला कहा, ए मेरे परवरदिगार, कद वफ़ई तो अहदी, ए परवरदिगार, मैंने अपने वादे को पूरा कर दिया, अब तू अपने वादे को पूरा कर दे। हुसैन का सजदे आखिर था, सजदे में सर था, शिम्र मलून आगे बढ़ा और गले की तरफ से ज़िबाह करना चाहा। एक मर्तबा हुसैन ने आवाज दी, शेख मेरा गला आगे से न कटेगा, इसलिए कि मेरे नाना ने जिंदगी भर बोसे लिए हैं, जिंदगी भर बोसे लिए हैं, मेरा गला आगे से न कटेगा। उसके बाद मेरे मौला का जुमला है, अना मज़बूहुन बिल कफ़ा, मुझे पुश्त गर्दन से ज़िबाह किया गया। शिम्र का खंजर बढ़ता रहा, 12 ज़रबों में हुसैन का गला कटा। अज़ादारों, पहली ज़रब लगी, आदम ने ज़मीन करबला को छोड़ दिया, मुझसे ये मंजर देखा नहीं जाता। दूसरी ज़रब खंजर की लगी, नूठे का मुझसे मंजर देखा नहीं जाता। इसी तरीके से हर नबी करबला की ज़मीन को छोड़ता रहा, मुझसे ये मंजर देखा नहीं जाता। कटते हुए गले से आवाज़ आई, अम्मा, अम्मा, आप न जाइएगा। एक माँ की आवाज गूंजी, ए मेरे लाल हुसैन, तुम्हारे सर को लेने के लिए माँ बकी से करबला आ गई। शिम्र का खंजर चला, सरो तन में जुदाई पैदा हुई। एक माँ की आवाज फ़िज़ाए करबला में गूंजती रही, ए अर्ज़ करबला, मेरा बच्चा करबला, मेरा बच्चा है बेगुनाह। ए अर्ज़ नैनवा, मेरा बच्चा है बेगुनाह। ए अर्ज़ मारिया, मेरा बच्चा है बेगुनाह। ए अर्ज़ नैनवा, मेरा बच्चा है बेगुनाह। घेरा है जालिमों ने मेरे नूरे ऐन को, ए ज़ुल्फ़िकार, तुझसे मैं लूंगी हुसैन को। माँ की फरियाद करबला के वन में गूंजती रही, सरोतन में जुदाई पैदा हुई। फ़िज़ाए करबला में आवाज गूंजी, अल्लाह क़ुतिल हुसैन बे करबला, अल्लाह ज़ुबिहल हुसैन बे करबला।